Hello students, welcome to another video session, and today we'll be starting a very important chapter, that is number system. And most of the time number system के जो questions होते हैं they are easy, but if you don't know the concept then might be possible you are not able to solve those questions, right? So let's see that how to go through the chapter. So first of all we'll be studying unit digit concept. Then we will be learning two digit or last two digit. Then we'll be learning that factors. Then we'll be learning remainders. We'll be going through LCM SCF also. Then we'll be moving to properties of number, or I can say properties based question or concepts. And then we'll be having miscellaneous concept, right? So these are the important, I can say, topics that we'll be covering. So without wasting much time, let's start unit digit. So if I talk about unit digit, I hope you all are aware that suppose we have a number AB, then this is the unit digit and this is the tens digit, right? And if I add another number like ABC, then this is going to be unit digit, then this is tens digit, and this is going to be 100 digit, right? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक नंबर लिखा है 13 इंटू 29, so what will be the unit digit? So of course you all can solve that is going to be, will be multiplying unit digit of first by the unit digit of second, that is 3 into 9 27. So I'll mark only 27, that is 7 is a unit digit. I believe it is clear. So this is very easy, but let's stretch this concept like 13 into 17 into 19 into 14 into 12, right? So no matter whatever be the number of digits we have, we'll be focusing only on the unit digit. So this is going to be 3 into 7 into 9 into 4 into 2, right? Don't write the complete number, just write the unit digit because you are dealing with the unit digit. So 7 into 3 is 21, so I'll be writing 1 only. 9 into 4 36, so I'll be writing 6 only. Then this will remain as it is 2, right? So 6 into 2, that is 12, and 12 into 1 is of course 12. So my answer will be unit digit 2. I believe it is clear, right? So these are very fundamental questions, right? Now moving to some next level. So suppose we have a number 143 power 491, right? So these type of question can be asked, but not usually asked because बहुत ही ईजी होते हैं, बट यू शुड नो दैट फॉर रीचिंग द गुड कंसेप्ट यू नो द बेसिक्स, राइट? तो इसमें क्या करना है हमको, वी हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट, राइट? तो इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है. तो बिफोर गोइंग फॉर द सोल्यूशन आई विल टेल यू दैट हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन और व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व. तो सबसे पहले हमको करना क्या है, दैट राइट यूनिट डिजिट ऑफ द बेस, unit digit of base, and remove all the numbers, remove all other numbers, other number or other digits. So this is the first step. Then in exponent divide it by 4, then replace it by remainder, and if remainder is 0, that is the remainder is 0, replace exponent by 4, राइट? ये कंसेप्ट है. तो इसको फॉलो करते हैं कि आखिर बोलना क्या चाहता है. So as I told you, we'll be focusing on 3 and remove all the numbers.
in exponent we have 491, will be dividing it by 4. So this is going to be, if I divide 491 by 4, so we are left with remainder 3, because the divisibility rule of 4 is that we have to divide last two digit, and 91 when divided by 4 will be getting remainder 3, right? So ये बनेगा 3 की power 3, and we know that 3 की power 3 is 3 into 3 into 3, or you can directly say sir this is going to be 27, so unit digit will be 7. तो I believe it is clear, right? तो आप इसको नोट कर लीजिए. Next, suppose we have 532 की power 6 90 into 1734 की power 153 into 963 की power 159, right? तो now what to do? As I told you, we have to find the unit digit. तो यूनिट डिजिट में हम लोग यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे बेस में, दैट इज़ 2, और यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे सारे के सारे एक्सपोनेंट्स को 4 से, राइट? So the remainder will be, that is 690 divided by 4. Actually we have to divide 90 by 4, so we'll be getting remainder 2 and 4, and again we'll be dividing 53 divided by 4, the remainder will be 1, then 3, 159, that is 59 divided by 4, the remainder will be 3. So this is going to be 4 into 4 की power 1 is 4 and 27. So we'll be focusing on the unit digit only. So 4 into 4 is 16 into 27, so 7 into 6 is 42. तो 2 मेरा राइट आंसर बनेगा. आई होप इट इज़ क्लियर, राइट? तो बेसिक कंसेप्ट है और यही आपको यूज़ करना है. यू कैन टैकल ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ द यूनिट डिजिट, राइट? आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अब जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आपके सामने, एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ आपको. 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अप टू 10 फैक्टोरियल and raised to the power 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial, right? इसको डिवाइड करना है and we have to find the unit digit, right? Find unit digit. अच्छा क्वेश्चन है, right? You must try this question. तो यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट इस एक्सप्रेशन का क्या आएगा, राइट? तो when we add factorial from 1 factorial to 2 factorial up to 10 factorial or even beyond that also, the unit digit is always going to be 3. इसका मतलब यहाँ पे 3 से रिप्लेस करना था, no matter whatever be the number of digits we have, but we'll be focusing on the unit digit, that is 3. Now you can solve it because it can be it is actually solvable. So this is 1 plus 2 plus 6 plus 24, right? So this is going to be 1 plus 2 6, 1 plus 2 3 plus 6 9 plus 24 33, right? तो 3 की पावर 33 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, दैट इज़ 4 से, पावर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज़ गोइंग टू बी रिमाइंडर 1, राइट? भाई 32 को 4 से डिवाइड करोगे 33 को, तो विल बी गेटिंग रिमाइंडर 1. तो 3 पावर 1 इज़ 3, सो दिस इज़ गोइंग टू बी द आंसर. आई होप इट इज़ क्लियर. तो एक चीज़ नोटिस करनी है यहाँ पर कि जब आपके पास ये एक्सपोनेंट है, तो आप 4 फैक्टोरियल के बाद के जितने भी नंबर्स हैं, हाँ वी हैव 4 फैक्टोरियल के बाद में, जैसे 4 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल, 8, जो भी बनेगा, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी 0. यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पे भी दोस्तों रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पे भी दोस्तों रिमाइंडर 0 आएगा 4 से डिवाइड करने पर भी. तो आई कैन से कि 4 फैक्टोरियल के बाद में जितने भी नंबर्स हैं, आई विल बी गेटिंग रिमाइंडर 0. इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी ख़त्म कर सकता था कि नीचे तो 3 ऑफ कोर्स आ ही रहा है, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 हो गया. हाँ, तो अगर ये रिमाइंडर ही 0 हो गया तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 प्लस 2 प्लस 6. तो दिस इज़ 3 की पावर, दैट इज़ 9, और 9 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 1, दैट इज़ 3, राइट? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि समटाइम्स माइट बी पॉसिबल आपके पास एक्सपोनेंट में बहुत बड़ा नंबर हो, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, अप टू 100 फैक्टोरियल. सो डोंट वरी अबाउट इट. आफ्टर 4 फैक्टोरियल ऑल द नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 4, सो विल बी रिप्लेसिंग द रिमाइंडर बाय द 0. हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 0 के लिए तो आपने 4 बताया था, बट वो तब बताया था जब आपके पास सिंगल
लाइक हमारे पास जो सिंगल डिजिट का एक्सपोनेंट है, बट यहाँ पे अगर मैं एक्सपोनेंट को a प्लस बी प्लस सी कर रहा हूँ तो अगर एक एक्सपोनेंट से रिमाइंडर 0 आ रहा है तो बाकी को आपको यूज़ करना है, इसकी जगह 4 नहीं लिख सकते, फिर तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, राइट। मतलब अगर कभी भी एक की पावर 0 बन रहा है तो उस केस में आपको 0 की जगह 4 लिखना था, बट इस वाले केस में नहीं लिखेंगे, राइट। चलिए, तो आई होप आपको यूनिट डिजिट का एक कंसेप्ट अच्छे समझ में आया होगा, राइट। अब हम बात करते हैं लास्ट 2 डिजिट। हाँ, लास्ट 2 digits, how to find the last 2 digits। तो लास्ट 2 डिजिट जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर ए बी सी डी, तो ये जो सी डी है इनको हम बोलते हैं लास्ट 2 डिजिट, एल टी डी। हाँ, मैं अपनी लैंग्वेज में छोटा सा लिख देता हूँ एल टी डी, लास्ट 2 डिजिट, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 73 इंटू 143, इसमें लास्ट 2 डिजिट निकालना है, यूनिट और टेंस प्लेस निकालना है। सो यूनिट प्लेस तो निकालना आसान है, दैट इज 3 इंटू 3 इज 9। अब टेंस प्लेस कैसे निकलेगा, राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लास्ट 2 डिजिट देखना है तो सबसे पहले तो आपको लास्ट 2 डिजिट पर ही फोकस करना, बाकी नंबर्स को आप रिमूव कर दीजिए। तो यूनिट डिजिट तो इसका आ गया 9, राइट। अब टेंस प्लेस पे कितना आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। फॉर फाइंडिंग द टेंस प्लेस, बाहर की मल्टीप्लाई बाहर करिए, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर, ऐसे। हाँ, बाहर वाले नंबर्स को बाहर से और अंदर वाले नंबर्स को अंदर से। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो 7 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, तो ये बनेगा 21, ये बनेगा 12, 33, और 33 में 3 आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो लास्ट 2 डिजिट बनेगी वो बनेगी 39। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। तो इसमें घबराना नहीं है, आपको ये तरीका आना चाहिए, वरना आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट मल्टीप्लाई तो बहुत बड़े नंबर का नहीं कर पाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन लिखा 1934 इंटू 2651 इंटू 3408, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है। हाँ, तो लास्ट 2 डिजिट बतानी है इसमें। तो सबसे पहले 34, देन 51, देन 08, राइट। तो बारी बारी से करते हैं भाई, इसकी मल्टीप्लाई पहले इन दोनों को टैकल कर लेते हैं। तो लास्ट में तो 4 1 जा 4 आएगा भाई, 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 आ गया। दिस इज अ यूनिट डिजिट। अब टेंस कैसे निकालेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 3 में, बाहर की बाहर और अंदर की अंदर। तो 4 5 जा 20 प्लस 3 1 जा 3, तो 23 मतलब 3 आएगा, इंटू 08, राइट। अब भाई 8 इंटू 4 32, ये तो आपका बनेगा यूनिट प्लेस, 32 में 2 आएगा। अब टेंस प्लेस में कितना आएगा, तो एज आई टोल्ड यू दैट बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर के अंदर, 3 8 जा 24, तो 24 में 42 आएगा, बिकॉज 4 इंटू 0 इज 0 एक्चुअली, राइट। तो ये आपका आंसर बनेगा, दैट इज 42। आई बिलीव इट इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। अब ये तो हमने अभी तक बेसिक बात करी कि मल्टीप्लिकेशन है, बट असली जो क्वेश्चन है वो शुरू होते हैं एक्सपोनेंट्स में। तो यहाँ पे जब हम लाइक ए की पावर बी है और उसमें हम लास्ट 2 डिजिट के कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इसको 4 तरीके से कैटेगराइज करेंगे और इसका आप नोट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बेस नंबर एंड्स ऑन 1, बेस नंबर एंड्स ऑन 379, बेस नंबर एंड्स ऑन 2 4 6 और 81, एंड बेस नंबर एंड्स ऑन 5। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको हमको टैकल करना है, राइट। तो सबसे पहले टाइप 1 की बात करते हैं, दैट इज टाइप 1। तो बेस नंबर एंड्स ऑन 1। फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लिखा है 12791 की पावर 438, तो इसका लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा। तो यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 1 बाई 1 की पावर एनीथिंग, 1 की पावर एनीथिंग यू विल बी गेटिंग 1, राइट। ये तो क्लियर है यूनिट डिजिट। बट टेंस प्लेस पे कितना है, राइट। तो टेंस प्लेस पे मैं आपको बहुत आसान से बताऊं तो 9 की जो मल्टीप्लाई है इसका टेंस और इसके वंस की मल्टीप्लाई करनी है भाई, इसका यूनिट डिजिट और इसका टेंस डिजिट। तो 9 इंटू 8 इज 72, तो आई विल बी राइटिंग 21, तो ये 21 आंसर बन जाएगा, राइट। मतलब अगर आपके पास नंबर है ए बी सी और डी और 1 लगा दिया आपने ना, ये 1, और आपने लिखा पी क्यू आर एस की पावर में, तो इसमें यूनिट डिजिट जो है वो 1 आएगा, और जो इसकी टेंस डिजिट है इसकी यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे डी इंटू एस, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपको यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, राइट।
आई बिलीव इट इज़ क्लियर। तो जैसे एक दो क्वेश्चन और करते हैं, 7321 की पावर 498, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा दोस्तों, एंड 2 8 जा 16, तो 16 का मतलब भाई 16 आएगा, बट हमको यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब टाइप 2 की बात करते हैं। तो टाइप 2 में क्या है दोस्तों, बेस नंबर एंड्स ऑन 3 7 और 9, 5 को बाद में लेंगे, बट ये 3 7 9। तो एक चीज़ नोट करनी है, 3 की पावर 481 होता है, 7 की पावर 42401 होता है, और 9 की जो स्क्वायर है वो 81 होता है, राइट। मतलब हमको 1 बनाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है, दैट इज़ 73 की पावर 49, राइट। अब आपको ये सोचना है कि जो बेस नंबर 3 है ये 1 कब बनाता है। तो आप बोलोगे सर 3 की पावर जब 4 होगी ना, तो मेरे पास 1 बनने की पॉसिबिलिटी है, ऑफ कोर्स, राइट। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, यहाँ पे 73 की पावर हम 4 करेंगे, और जब आप 4 करेंगे तो यहाँ पे 12 पावर बचेगी, और यहाँ पे बचेगा 73 की पावर 1, ऐसा भाई। 49 को स्प्लिट करेंगे 4 में, दैट इज़ 49 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी, भाई क्वेश्चन तो आएगा 12 और रिमाइंडर आएगा 1, राइट। तो ये हमने क्वेश्चन लिख दिया और ये हमने इसका रिमाइंडर लिख दिया, राइट। अब ये सवाल ऐसे बन गया, तो 73 की पावर 4, इट इज़ नॉट सो ईजी, तो हम इसको 73 का स्क्वायर इंटू 73 का स्क्वायर लिखेंगे। ये भी बात क्लियर है कि पावर 12 इंटू 73। अब क्या करना है, अब देखो 73 का स्क्वायर या तो आप याद कर लो, या फिर एक तरीका है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ 73 का स्क्वायर इज सेम एज लास्ट 2 डिजिट ऑफ 100 माइनस 73 का स्क्वायर, एंड इट इज़ ट्रू फॉर अदर नंबर्स ऑल्सो लेस देन 100, राइट। तो 100 के नीचे जो भी नंबर्स हैं उनके लिए ट्रू बनेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब अगर मैं 73 का स्क्वायर नहीं जानता या नहीं करना चाहता, तो मैं 100 माइनस 73, तो 100 माइनस 73 यू नो कितना होता है, दैट इज़ 27। तो 27 का जो स्क्वायर होगा वो भी आपका सेम आंसर आएगा जो कि 73 का स्क्वायर। अब 27 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ 729, राइट। तो 729 होता है, यहाँ पे 29 बचेगा दोस्तों, यहाँ पे भी 29 बचेगा। लास्ट 2 डिजिट लिखने हैं, बाकी नहीं लिखना आपको। पावर 12 इंटू 73, अभी 29 का स्क्वायर तो आप जब जानते हैं ना, 29 इंटू 29 दैट इज़ 29 का स्क्वायर इज़ 841, तो यहाँ पे आपको 41 मिलेगा, उसकी पावर 12 इंटू 73। अब ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करने मिलेगी कि यहाँ पे 1 बन गया, और 1 बनते ही तो मैं अभी हमने टाइप 1 वाला जो रूल सीखा था उसको हम चिपका देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे तो 1 आना मैंडेटरी है, इंटू यहाँ पे बनेगा 4 बाई 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 4 2 जा 8, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों दैट इज़ 8 बन जाएगा, राइट, बाई 4 इंटू 2 यहाँ पे, और बचा है यहाँ पे 73, राइट। अब क्या करेंगे, 81 की मल्टीप्लाई 73 में कैसे बताया था मैंने आपको, भाई इसका लास्ट टू डिजिट लिखना है, तो लास्ट में तो 3 आना मैंडेटरी है, भाई 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ऐसे 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना यूनिट डिजिट निकालने के लिए। नाउ टेंस प्लेस कैसे निकलेगा इसका, तो बाहर की बाहर मल्टीप्लाई, दैट इज़ 8 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 7 31, राइट। तो भाई कैरी तो कुछ है नहीं, तो 31 का मतलब 13, तो 13 सवाल का राइट आंसर है। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। एक और एग्जांपल है, जैसे 113 की पावर 49, अब कैसे करेंगे इसको, तो फिर से सवाल वही है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 3, या आपकी थोड़ा सा और चेंज कर दें, इसको 7 कर लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा फील आएगा डिफरेंट डिजिट का। यहाँ पे 7, तो लास्ट 2 डिजिट में हम 17 लिखेंगे ओनली, बाकी सब मेरे लिए यूजलेस है। अब क्या करेंगे इसमें, अब देखो भाई 7 4 कब बनाता है, मतलब 7 की पावर 4 जो है वो लास्ट में 2401 बनता है, पता है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे 17 की पावर 4 करेंगे, और भाई
49 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 12 आएगा और यहाँ पे बचेगा इंटू 70। अब 17 का स्क्वायर बोले तो 17 इंटू 17 मतलब 17 स्क्वायर इंटू 17 स्क्वायर और ये बनेगा 12 इंटू 17, राइट। अब 17 का स्क्वायर तो आप सबको पता होना चाहिए, दैट इज़ 289। तो यहाँ पे भी दोस्तों 89 और यहाँ पे भी 89 की पावर 12 इंटू 17। अब ये बन गया 89 का स्क्वायर, ठीक है। तो 89 का स्क्वायर अभी आपको नहीं आएगा तो हमने क्या बोला, आप 100 माइनस 89 का स्क्वायर कर लो, यू विल बी गेटिंग द लास्ट टू डिजिट सेम। तो 100 माइनस 89 इज 11 का स्क्वायर, दैट इज 121। तो जो 11 के स्क्वायर की लास्ट टू डिजिट आएंगी वो भी सेम 89 के स्क्वायर के आएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम इसको 21 से रिप्लेस कर सकते हैं इंटू 12 पावर 12 इंटू 17, राइट। अब देखो ये रूल इजी है भाई, 1 पे एंड कर दिया आपने नंबर को तो इसका यूनिट डिजिट तो 1 आएगा और इसका टेंस प्लेस आएगा, दैट इज़ 2 इंटू 2 4 और इंटू 17, राइट। अब इसका यूनिट डिजिट और इसका टेंस प्लेस कैसे आएगा भाई, 7 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7 आएगा यहाँ पर। अब टेंस प्लेस कैसे निकालेंगे इसका, तो एज आई टोल्ड यू बाहर की मल्टीप्लाई बाहर और अंदर के अंदर, तो 7 इंटू 4 28 प्लस 1 क्यों, क्योंकि 1 इंटू 1 भी करना पड़ेगा ना, तो 29। तो 29 में आपको लास्ट में 97 ही दिखेगा जो कि इसका राइट आंसर बनेगा। आई बिलीव इट इज क्लियर। और ना आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। 17 एकम 17 और 17 चौके 68 और 1 69, भाई यही तो मैंने बोला, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा, तो 97, ठीक है। तो टाइप 2 भी हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं टाइप 3 के बारे में। टाइप 3, तो टाइप 3 में मैंने क्या बताया था, बेस नंबर एंड्स ऑन 2 4 6 और 8, राइट। अब इसको कैसे टैकल करेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, जैसे एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, 2 की पावर 10 जो है 1024 होता है, ये पहला रूल है। और दूसरा कि 24 की पावर एनी ऑड नेचुरल नंबर करते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी 24 एंड 24 की पावर हम इवन नेचुरल नंबर कोई भी कर लीजिए, इवन नेचुरल, तो दिस इज़ गोइंग टू बी 76। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, राइट। अब इसका क्या मतलब है कि हम 2 की पावर 10 लिख दिया हमने 1024 ऐसा। अब इसको एप्लीकेशन क्या है इसका, फॉर एग्जांपल हमको बेस एंड करना है 2468 पे, मैंने एक नंबर लिखा है फॉर एग्जांपल 2 की पावर 193, इसकी लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करनी है, राइट। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बिकॉज आपके पास सारा का सारा नंबर 2 की पावर में ही है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर के 10 10 के बंडल बनाएंगे। तो 2 की पावर 10 मतलब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन विल बी 19 और जो रिमाइंडर बचेगा 3, राइट। तो 2 की पावर 10 हो गया 1024 की पावर 19 इंटू 8, राइट। अब सवाल वही है कि 24 आपके पास अवेलेबल है और पावर है आपके पास ऑड, है ना, ऑड नंबर लिखा है। तो लास्ट 2 डिजिट इसकी 24 आएगी इंटू 08, राइट। तो 8 4 जा 32। अब ये 3 आपका कैरी है, इसका ध्यान रखेंगे। अब बाहर की बाहर मल्टीप्लाई, अंदर के अंदर, 0 इंटू 4 इज़ 0 एंड 8 2 जा 16, तो ये बनेगा 16 में प्लस 3 ऐड करेंगे 19, तो 92 इस सवाल का राइट आंसर बन जाएगा, राइट। आई बिलीव इट इज क्लियर। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको ऐसा ही नंबर मिले। आपको हो सकता है, मान लो हमने क्वेश्चन लिख दिया ऐसे कि 1312 की पावर 94, राइट। अब लास्ट 2 डिजिट आपके पास 12 है यहाँ पर और 94। अब आप 2 को तो अलग नहीं कर पाएंगे भाई, 2 की पावर का मतलब ये था कि वहाँ पे तो 2 ही था, यहाँ पे 12 है। नाउ व्हाट विल बी डूइंग, हम नीचे वाले नंबर को, कंपोजिट जो नंबर है, इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ 2 का स्क्वायर इंटू 3। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। अब इनके जो एक्सपोनेंट है उनको सेपरेट करेंगे, दैट इज़ 2 की पावर हो जाएगा 2 इंटू 94 और ये हो जाएगा 3 की पावर 94। अब ये 2 क्वेश्चन बन गए बेसिकली, 2 की पावर 188 इंटू 3 की पावर 94, राइट। अब इसका तो तरीका मैंने अभी आपको सिखाया, 2 की पावर 10 में स्प्लिट कर दीजिए, तो ये बनेगा 2 की पावर 10 की पावर 18 इंटू 2 की पावर 8। अब इसके लिए 3 वाला रूल लगाएंगे, तो 3 1 कब बनाएगा, है ना भाई, मैंने आपको रूल पहला सिखाया। तो 3 की पावर 4, दैट इज़ ये बनेगा 4 से डिवाइड करेंगे 92 को, तो दिस इज़ गोइंग टू बी 23 और 3 का स्क्वायर, राइट। चलो अब क्या करेंगे,
तो ये तो जाएगा 1024 की पावर 18, और 2 की पावर 8 होता है, दैट इज़ 256, राइट, ऐसा 56। अब 3 की पावर 4 81 होते हैं, इतना तो आप सबको पता ही होगा, इंटू 23 इंटू 9, राइट। अब देखो ये बन गया दोस्तों 24, और 24 की पावर इवन, और यहाँ पे हम लास्ट 2 डिजिट 56 लिखेंगे, यहाँ पे रूल लगाएंगे 1 वाला, तो आपके पास नंबर 1 पे एंड करेगा, और 8 इंटू 3 24, तो 24 का मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे 4, तो ये 41 इंटू 09। आई बिलीव इट इज क्लियर। नाउ यहाँ पे 24 की पावर इवन है, तो विल बी एंडिंग ऑन द 76 इंटू 56 इंटू 41 इंटू 09। अब ये क्वेश्चन मेरी बिल्कुल रेंज में है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 76 इंटू 56 इंटू 41 इंटू 09, राइट। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, फाइनली बाद में सबको सॉल्व कर लिया, राइट। तो ये बनेगा 6 6 36, तो 10th प्लेस पे कितना आएगा, 36 में 3 कैरी, ध्यान रखेंगे। अब 6 इंटू 7 और 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 6, तो ये बन गया 42, और ये बन गया 30, तो ये बन गया 72। अब 72 में 3 ऐड करेंगे 75, तो 75 में हम 56 लिखेंगे। अब इसको टैकल करेंगे, तो यहाँ पे 1 इंटू 9 इज़ 9 एक्चुअली। अब यहाँ पे 41 इंटू 09 है ना, 09, तो बाहर के बाहर मल्टीप्लाई और अंदर के अंदर, 1 इंटू 0 इज़ 0, तो यहाँ पे 36 बनेगा, तो यहाँ पे हम इसको 6 लिख, अब फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 56 इंटू 69। अब इसका यूनिट इज बनेगा 9 इंटू 6 इज़ 54, 5 कैरी है, ध्यान रखेंगे। 5 9 या 45, 6 6 या 36, प्लस 45 81, प्लस 5 86, तो 64 इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो ऐसे कोई भी नंबर नीचे कंपोजिट बनेगा, पहले उसको प्राइम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसका टैकल करेंगे एज पर द रूल, राइट। अब लास्ट जो है दैट बेस नंबर टाइप 4 है, ये बेस नंबर एंड्स ऑन 5, राइट। अब देखो इसके लिए सिंपल सा रूल है, 2 तरीके हैं। जैसे मान ले 5 है, यहाँ पे कोई ऑड नंबर लिखा है, हाँ ऑड नंबर, और इसकी पावर ऑड लिखी है, एंड यहाँ पे आपके पास इवन, या इवन की जगह कोई और नंबर, एनी नेचुरल नंबर 5 की पावर एनी पावर, हाँ। तो इसका क्या रूल है, अगर ऑड के साथ ऑड है तो ये 75 पे एंड करेगा इसका लास्ट 2 डिजिट, और इसमें हमेशा लास्ट 2 डिजिट जो है 25 बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 23275 की पावर 195, तो यहाँ पे हम इसको 75 को देखेंगे, यहाँ पे 195, ठीक है। तो ये दोस्तों ऑड है 7, और इसकी पावर भी ऑड है, हाँ। तो ऑड की पावर ऑड बोले तो लास्ट में 75 आएगा, राइट। अब जैसे हमने एक और एग्जांपल लिखा 222325 की पावर 645, राइट। तो हमें लास्ट का 2 डिजिट लिखना 25 की पावर 645। सो व्हाट आई टोल्ड यू, यहाँ पे ऑड के अलावा कुछ भी है, लाइक इवन ही बचेगा वैसे तो, ठीक है। तो ऑड के अलावा तो इवन ही बचेगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्सेप्ट एनी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट ऑड, या एक काम करना करें भाई, ऑड नंबर कुछ भी आएगा मतलब, ठीक है। एनी नेचुरल नंबर की पावर एनी, ठीक है, ये एक्सेप्टेंस है, ठीक है। तो ये रूल है 1, और ये दोस्तों रूल है 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला 25, हाँ ये देखो इवन नंबर है, और यहाँ पे पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, तो विल बी एंडिंग ऑन द 25, दिस इज द लास्ट 2 डिजिट, राइट। So that's all for today, and today I have completed 2 topics, that is unit digit and the last 2 digit. So next class में हम इसको continue करेंगे, और जो हमारा next topic रहेगा फैक्टर से रिलेटेड रहेगा। So see in the next video, और ये जो PDF है आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @quantprep99, मिल जाएगा आपको लिंक, यू कैन फाइंड देयर, राइट।
So thank you and see you. Please do subscribe Conpair Up 19. Bye, take care.